السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ونکنڈا ٹاؤن گنگنینی کلیانہ منڈپم میں انجہانی نندا موری تارک راما راؤ کی برسی کے موقع پر تلگو دیشم پارٹی کے صدر اور پالناڈو ضلع تلگو دیشم پارٹی کے سابق قانون ساز مولانا مصطفیٰ احمد اور کونجیتی ناگا سینو نیز قائدین نے خون کے عطیہ کیمپ میں کارکنوں اور شائقین کے ہمراہ شرکت کی۔ امن کمیٹی کی ایک میٹنگ مقبول سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مراد آباد نے پولیس انتظامی افسران کی موجودگی میں پنچایت بھون کے آڈیٹوریم میں قانون اور امن اور آنے والے تہواروں پران پرتشٹھا پروگرام کے پیش نظر منعقد کی۔ ایودھیا اور یوم جمہوریہ کی تقریبات اور اشرفیہ کے لوگوں، مذہبی رہنماؤں، امن کمیٹی کے اراکین سے اپیل کی گئی کہ وہ آنے والے تہواروں تقریبات کو پرامن اور ہم آہنگی کے ساتھ منائیں۔ عمران نامی شخص جو محمودہ ہوٹل کے پاس رہنے والے تھے اور صبح ٹرین ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے۔ ٹرین کی پٹری پر ان کی لاش ملی۔ کسی نے محمد قادر کانگریس اسٹیٹ سیکرٹری مینارٹی ٹی پی سی سی کو اطلاع دی، جس پر محمد قادر لیڈر نے پولیس کو بلوا کر آر پی ایف کو کال کروایا اور گھر والوں کو بھی اطلاع دی۔ عمران مرحوم ایک لیبر بتائے گئے۔ آج مائلارد پلی مغلز کالونی میں جو ہے ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا پھر بیچ میں ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا ہے بول کے تو لوگ بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ چلو بھائی کیا دیکھ رہے ہیں، ادھر تو آپ ادھر تو جاؤ، بعد ہی پتہ چلے گا یہ ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا کیا ہوا۔ 2 پیر کٹ چکے ہیں۔ 2 پیر کٹنے کے بعد ایک پیر جو ہے نا یہاں کے تھوڑے سے کتے جو لے کے مائلارد پلی مغلز کالونی کے گراؤنڈ میں لے کے چلے گئے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب بھی ٹرین کی پٹری جب بھی کراس کرتے ہیں آپ لوگ تو کراس کرتے وقت آگے پیچھے دیکھ کر کراس کریے۔ دیکھیے ٹرین کتنی فاسٹ آ رہی ہے۔ دیکھیے ایک بار میں بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو ٹرین ایکسیڈنٹ یہاں پر زیادہ سے زیادہ ٹرین ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ اور پبلک کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا مہربانی کر کے کتنی فاسٹ ٹرین آ رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں جب بھی ریلوے گیٹ کراس کرتے جب بھی، اور فیملی ممبر سے جیسے کہ فنکشنز میں جانا ہو یا پھر کہیں اور جانا ہو، گھومنے جانا ہو، تو یہاں پر ریلوے گیٹ کراس کرتے وقت زیادہ سے زیادہ دھیان رکھیے، آگے اور پیچھے سائڈ میں سب دیکھ کر پٹری کراس کریے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے۔ میں محمد قادر کانگریس اسٹیٹ سیکرٹری مائنارٹی ڈپارٹمنٹ مغلز کالونی ویلفیئر سوسائٹی پریزیڈنٹ۔ تلگو دیشم پارٹی کے بانی صدر اور تلگو عوام کی عزت نفس کی علامت انجہانی ڈاکٹر نندا موری تارک راما راؤ کی 28ویں برسی کے موقع پر این ٹی آر بھون میں انجہانی ڈاکٹر نندا موری تارک راما راؤ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر این ٹی آر ٹرسٹ کے ٹرسٹی نارا بھونیشوری نے این ٹی آر کی مورتی پر پھولوں کے ہار چڑھائے اور چراغ روشن کیا۔ اس کے بعد خون کا عطیہ دینے کی مہم شروع کی۔ کمشنر آف پولیس سائبرآباد اویناش موہنتی آئی پی ایس نے راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او بی ناگریندر بابو، اے ڈی سی پی سادھنا رشمی پیرومل، آئی پی ایس اے سی پی گنگادھر، ایڈمن ایس آئی رمیش کو بہترین پولیس اسٹیشن کا ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ سی پی سائبرآباد نے کہا ہے کہ یہ کامیابی راجندر نگر پولیس اسٹیشن کی پوری ٹیم کی لگن اور محنت کا ثبوت ہے اور اعلیٰ اعزاز حاصل کرنے پر انسپکٹر ناگیندر بابو کو مبارکباد دی۔ کمیونٹی کی خدمت کرنے اور قانون کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا عزم تمام سی پی کے لیے ایک تحریک ہے اور مرکزی وزیر داخلہ نے 5 جنوری 2024 کو جے پور میں ڈی جی کانفرنس میں راجندر نگر کے انسپکٹر بی ناگیندر بابو کو بہترین پولیس اسٹیشن کا ایوارڈ پیش کیا۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے پارٹی ایم ایل سی سے ملاقات کی اور کہا کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے دیے گئے 420 وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم خننہ میں پارٹی کی جانب سے دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ہم کانگریس کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ دی گئی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کرے۔ اگر یقین دہانیوں سے بچنے کی کوشش کی گئی تو اسمبلی میں مضبوط اپوزیشن اس پر قانون سازی کے فلور پر سوال کرے گی۔ قانون ساز کونسل کے ارکان کو پارٹی کی آنکھ اور ارکان کا کام کرنا چاہیے۔ قانون ساز کونسل کے اراکین بھی اپنے حلقوں میں پارٹی لائنوں کے ساتھ ہم آہنگی کرنی چاہیے جنہوں نے پہلے انتخاب کیا ہے۔
आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस शर्मिला रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह पर एवेला जनसेना के सरबराह पवन कल्याण से मुलाकात की और शादी का एक दावतनामा पेश किया, जिसमें उनसे उनके बेटे वाईएस राजा रेड्डी की शादी में शिरकत के लिए कहा गया। वनुकुंडा टाउन गंगिनेनी कल्याणा मंडपम में अंजहानी श्री नंदामोरी तारक रामाराव की बरसी के मौके पर नंदामोरी तारक रामाराव तेलुगु देशम पार्टी के सदर पालनाडु जिले साबिक खानसाजों ने वहां पर उनकी तस्वीर पर फूलों की चादर चढ़ाई और प्रोग्राम को जारी रखा। ब्लड डोनेशन कैंप प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने एमएलए कौसर मोहिउद्दीन के साथ हल्के कारवान की कई कॉलोनियों का दौरा किया। कमिश्नर जेएचएमसी रोनाल्ड रोज ने कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन के साथ जियागुड़ा, गोलकुंडा किला, टोली चौकी, सालारजंग, आदित्य नगर में सड़कों की देखभाल, तूफानी पानी की निकासी और सफाई के कामों का मुआयना किया। एमएलए ने कमिश्नर को तूफानी पानी की निकासी, सड़कों और सफाई के इंतजामात पर लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में बताया। कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने अफसरान को तमाम मसाइल मौके पर हल करने की हिदायत की। गजवेल के थैंक्स गिविंग मीटिंग में साबिक वज़ीर हरीश राव ने शिरकत की और कहा कि दोनों कौमी जमातों ने गजवेल में केसीआर को शिकस्त देने का काम किया। उन्होंने ज़ातों और मज़ाहिब को तकसीम करने की कोशिश की, इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और केसीआर की जीत के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने कहा कि हमारे बीआरएस खानदान के अफराद के सामने सर झुकाना, ये जीत आपकी है, ये आप सबके लिए मुश्किल है। ये खसूसी मुलाकात आपका शुक्रिया अदा करने के लिए है। केसीआर पर 154 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। बहुत सारी साजिशें ड्रॉ के बाद 47 रह गए। कुछ 4 मिशनों की तश्कील से उलझन में थे। उन्होंने कहा कि 18,750 वोट ज़ाय हुए। मजीद 2,200 वोटों ने गाड़ी की तरह रोड रोलर को निशान जद किया। करीमनगर के साबिक मेंबर पार्लियामेंट बोयनपल्ली विनोद कुमार ने कहा है कि बीआरएस पार्टी का कांग्रेस हुकूमत को गिराने का कोई इरादा नहीं और अगर कांग्रेस हुकूमत की तरफ से किए गए वादों को 100 दिनों के अंदर नाफिज नहीं किया गया तो अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देगी। करीमनगर के एमपी बंडी संजय कहा कि ये इंतबाह करना अजीब है कि कांग्रेस हुकूमत गिरने वाली है और कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। अलांता कुंटा मंडल मरकज में एमपीटीसी ओगो नरसैया के घर पर रमना कंडूर के साबिक एमएलए रस्माई बालाकिशन के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ఏదైతే వడ్లకి ఇస్తున్నామో ఇప్పటిదాకా ఇస్తున్నాం కదా, అది 1800, 1900, 2000, 2060. పోయినసారి ఎంత ఉండే? 2203 రూపాయలు మొన్న అదన అది కనీస మద్దతు ధర ఉండే, దానికి 500 రూపాయలు ఇస్తాడు. అంటే దాదాపు 3000 రూపాయల వరకు కింటాలు వస్తుంది అని చెప్తాను రెడ్డి సాబ్. అర్థమైంది కదా? అంటే దాదాపు క్వింటాల్కి 500 రూపాయలు అదనంగా ఇస్తాడు. కాబట్టి తర్వాత 10,000 రూపాయలు ఏదైతే రైతు బంధు ఇస్తాడో కేసీఆర్, దాన్ని 15,000 చేస్తాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి ప్రజలు ఓట్లేసారు. ప్రజల్ని మనము ఎందుకు తప్పుపట్టాలి? ప్రజలు నమ్మిండ్రు. మా ఆడబిడ్డలు, తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు 1,00,000 రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ 1,00,000 రూపాయలు కేసీఆర్ ఇస్తాడు, 10 ఏళ్ళు ఇచ్చిండు. ఓహో, దానికి తులం బంగారం రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తాడు కాబట్టి మేము ఓట్లేస్తామన్నారు. కనీస మద్దతు ధరకు క్వింటాల్కు 500 రూపాయలు రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తా అన్నాడు కాబట్టి ఓట్లేస్తాం. 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ అన్నాడు కేసీఆర్. 1,00,000 రుణమాఫీ అంటే ఈయన 2 లక్షల రుణమాఫీ అన్నాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ మాకు ఇన్ని వచ్చినప్పుడు ఇంకా కేసీఆర్కి 10 ఏళ్ళు ఇచ్చినాం కదా, ఇప్పుడు ఇస్తామని చెప్పి ఓటర్ మహాశయులు ఓట్లు వేసిండ్రు, మార్పు కోరిండ్రు. అది జరిగింది. అది నేను ఆపితే ఆగేది కాదు, కేసీఆర్ ఆపితే ఆగేది కాదు. వేసేసారు ఓట్లు. ప్రజలు వాళ్ళకి ఏది లాభం పొందుతారని చూశారు. ఇదే ప్రజలు రేపు ఇవి ఇస్తారా ఇయ్యారా అనేది చూస్తారు. 100 రోజుల కోసం చూస్తారు. ఇప్పుడు 100 రోజులు చూస్తారు. మార్చి 17కు 100 రోజులు అయిపోతుంది. ఈ 100 రోజుల తర్వాత అప్పుడు రైతులు, సామాన్య ప్రజలు అడుగుతారు. మహాలక్ష్మి ప్రతి ఇంట్లో ఆడబిడ్డకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తా అన్నారు. అత్తకు అత్త ఉంటుంది ముసలామె, ఆమెకు అత్త ఉంటుంది ముసలామె బతికున్నోళ్ళు,
ఆమె 2-3 యారాన్లు ఉంటారు వాళ్ళకి. సో 5-6 ఆడోళ్ళకి 2,500 రూపాయలు వస్తాయి. ఎందుకు కొట్లేరు మరి? बनोकुंडा कस्बा बस स्टैंड में दुनिया के मशहूर अदाकार जहानी नंदा मोरी तारक रामाराव की बरसी के मौके पर पालनाडु जिले के तेलुगुदेशम पार्टी के सदर और साबिक रुकन असेंबली जेवी अंजनू ने खुराक के अतिया प्रोग्राम में शिरकत की। मनोकुंडा शिव प्रसाद बनोकुंडा हल्के के मुबसरीन और कायदीन व कारकुनों ने प्रोग्राम में शिरकत की। मेलावरम के एमएलए वसुंता कृष्ण प्रसाद ने वाजे किया है कि एमपी कैशन और नानी एक हैं। सिर्फ इंतखाबात के दौरान सियासत और दीगर मौके पर तरक्की और फलाह व बहबूद ही अहम एजेंडा होगा। विजयवाड़ा के मेंबर पार्लियामेंट कासिनैनी श्रीनिवास नैनी की कोशिशें जो लोगों को बगैर किसी परेशानी के पीने के पानी की फराहमी के इक़दाम कर रही है, काबिल सताइश है। मुकामी एमएलए वसुंता कृष्ण प्रसाद ने एमपी कासिनैनी के साथ जुमेरात को मेलावरम के जरी मार्केट यार्ड में 17 गांवों के लिए पीने के पानी के टैंकर हवाले किए। जिले निर्मल तेलंगाना अखिलती खामती स्कूल्स व कॉलेजेस आरएलसी कैप्टन मोहम्मद सलीमुद्दीन ने कहा है कि तालीमी साल 2024 और 25 के तहत टिमरीज में ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का 18 जनवरी से आगाज अमल में आ गया है। उन्होंने निर्मल, भैंसा, खानापुर, मधुल मुकामात के औलिया तलबा से अखिलती खामती स्कूल व कॉलेजेस में अपने नौनिहालों को दाखिला दिलवाकर रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि मज़कूरा तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त रिहाइश और दीनी तालीम का भी मियारी इंतजाम मौजूद है। और कहा कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी निर्मल और मधुल में गर्ल्स स्कूल व कॉलेज दस्तियाब है। जमात पंजुम और इंटरमीडिएट साल अव्वल के लिए अहले तलबा स्कूल्स के औकात में रुजू होकर दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के अलावा मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 7331170868 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। जबकि भैंसा टिमरेज बॉयज स्कूल व कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने बताया कि 5वीं जमात में अक़लियती तलबा के लिए 60 निशस्तें और गैर अक़लियती तलबा के लिए 20 निशस्तें जुमला 80 निशस्तों और इंटरमीडिएट साल अव्वल में ग्रुप एमपीसी में 40 और ग्रुप बाईपीसी में 40 निशस्तों के लिए दाखिले मतलूब हैं, जिसके लिए तालिब इल्म का आधार कार्ड और औलिया तलबा के आधार ज़ेरॉक्स के अलावा तालिब इल्म की एक पासपोर्ट साइज फोटो और मौजूदा स्कूल की तफसीलात दरकार हैं। जिले अक़लियती बहबूद ऑफिसर हैदराबाद टिमरीज की सरकारी वेबसाइट के जरिए अक़लियतों, कम्युनिटीज और गैर अक़लियतों के अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर रहे 40 TMR स्कूल्स में क्लास पंजम में दाखिले, 40 जूनियर कॉलेजेस जनरल एंड वोकेशनल और 4 CEOETMR जूनियर कॉलेजेस में और अक़लियतों के लिए बैकलॉग वैकेंसीज के लिए तालीमी साल 2024-25 के लिए क्लास 6वीं, 7वीं और 8वीं में ऑफलाइन दरख्वास्त फॉर्म मुतल्लिका स्कूलों और जूनियर कॉलेजों से हासिल किए जा सकते हैं और ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए बराह रास्त मुतल्लिका प्रिंसिपल्स को जमा कराए जा सकते हैं। TMR जूनियर कॉलेजों में इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले के लिए टिमरीज तलबा को तरजीह दी जाएगी जो टिमरीज की उसूलों के मुताबिक उनकी अहलियत से मशरूत है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने 3 मुलजमीन और 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है जो PS चंद्रायन गुट्टा डिवीजन साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद के ऑटोमोबाइल चोरी के वाकयात में मुलविस थे। तफ्तीश से पता चला है कि मज़कूरा मुलजिमान और CCL करीबी दोस्त हैं और वो अपनी शाहाना जिंदगी के लिए घर, दुकानों के सामने पार्क की गई 2 व्हीलर गाड़ियों की चोरी करने का इरादा रखते, क्योंकि वो आदि मुजरिम हैं और अपने मंसूबे के मुताबिक वो 6 मोटरसाइकिल्स के इर्तिकाब कर चुके हैं। आज तारीख 18/1/2024 के चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने चोरी के मामला में मुलविस 3 मुजरिम और 2 नाबालिग बच्चों जूनियर बच्चों को MBN एक्स रोड से गिरफ्तार किया है ना। इसके मामला में 5 आदमी पूरा 5 आदमी है, 2 जूनियर है। क्या एमओ क्या है, एक आदमी पूरा पीन रहे थे ये इन फ्रंट ऑफ हाउसेस में, घर के सामने ये पार्किंग का व्हीकल्स का देखने के बाद में ये 1 को इंफॉर्मेशन दे देते। ये 1 का मोहम्मद अजीज है, अजीज की इन्फॉर्म कर ले तो मोहम्मद जानी पाशा इन्हों ऑब्जर्वेशन कर लेते ये ला कर ये घर के सामने बोरा सो गया। देखने के बाद में
तीनों मिलके एक ये 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का मामला में ये निकाल देते। एक चंद्रंगोटा लिमिट्स में 5 व्हीकल्स है और दूसरा एरिया में गोलकोंडा एरिया में और एक 6 व्हीकल्स का रिकवरी करे चंद्रंगोटा पुलिस और 5 आदमी को आज अरेस्ट कर दिया। ये लोग कहाँ के रहने वाले? एक 2 चंद्रंगोटा वाला है, एक चेतनाक वाला है और गोलकोंडा एक आदमी है। अजीज राशन गोलकोंडा, मोहम्मद शरीफ चेतनाका, मोहम्मद जानी पाशा चंद्रनगुट्टा और 2 आदमी, ये 2 आदमी जूनल का कहाँ रहते? चंद्रनगुट्टा। तो सवेगा में कोई केसेस है? पहले केसेस है, ओनली चंद्रनगुट्टा फर्स्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।